Good morning, student. You have seen how to draw three rays. We have seen the rules for drawing that simple three rays. Which three first ray was there? First parallel to principal axis, passing through focus. Second ray passing through focus will be after refraction become parallel to principal axis. Third, passing through the optical center without any deviation. Now using these three rays, we have to find out the position, location of the image form and size of the image and everything about the image. You have to predict geometrically. Okay, so this is the first figure. Here the object is at infinity. Object is at infinity. Whenever the object is at infinity, the rays coming from the object are parallel to the principal axis. रे कैसे आएंगे बोलो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे लाइट समझो चंद्रपुर की लाइट गई है और आप स्टार की तरफ देख रहे हैं. स्टार की तरफ देखते समय आपके आई का प्रिंसिपल एक्सिस किससे मैच करता है? स्टार से मैच करता है. स्टार कितना दूर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. नाउ दिस रेज कमिंग फ्रॉम स्टार विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगे. ऑल दिस रे विल पास थ्रू लेंस एंड फोकस एट and converge at a certain point on the principal axis, that is called focus. तो स्टार हो सकता है हमारे सोलर सन से भी 1000 टाइम बड़ा होगा, लेकिन वो कितना सा दिखता है? एक छोटा पॉइंट दिखाई देता है. वैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट जो है आपको एक पॉइंट साइज दिखाई देगा, है ना. सो दिस इज द केस व्हेन वी लुक टू द स्टार व्हिच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम यू. आपसे जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्टार है, जब वहां स्टार की तरफ देखते हैं, भला ही हमारे सन से वो 1000 टाइम बड़ा होगा, लेकिन आपको एक पॉइंट साइज दिखाई देता है. तो ये उसका प्रेडिक्शन है. दिस इज द रे डायग्राम फॉर शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. इज दैट क्लियर? ओके, देन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टू द लेंस नाउ. ओके, सी लेंस. This middle point is optical center. Then this is the focus f1. This is twice of f1. This is thrice of f1. Here we indicate f2. This sphere is there. Spherical surface is there. Spherical surface have center. That's called center of curvature. And the middle point of center of curvature and optical center is called focus. All that we have seen. This is f2. This is 2f2. This is 3f2. Okay. So what you find that? Here f1, here f2, because two surfaces are there, may be curved and they will have different radii of curvature. That's why we show like this. Okay, so where the object is kept beyond 2f1. Here the object was at infinity, here it is beyond 2f1. object कहाँ पे बोलो? beyond 2f1 में. और object का नाम है AB. object is AB. Now we will draw that three ray that we have studied in last video. How is the first ray? First ray parallel to principal axis. After passing through the convex lens से जाने के बाद क्या रूल है बोलो? It will pass through focus. So you adjust the scale and draw so that it will pass through the focus. Now second ray. How is the second ray? Second ray is passing through the optical center. जब भी optical center से as it is pass हो जाता है. जब as it is pass होगा, they will meet at this point. This point is A dash. So image form is A dash B dash. इमेज कौन सी बन गई बोलो? A dash B dash इमेज बन गई. ओके, ठीक है. तो AB is the object, A dash B dash is the image. How is the image seen? Image is of small size. इमेज कैसी है बोलो? छोटे साइज की इमेज है. बराबर. तो ये केस है जब आप कहाँ देख रहे हो बोलो? रोड पे खड़े हो, या आप समझो 4th 5th 6th मंजिला इमारत पे खड़े हो, है ना, बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो. अगर नीचे कोई खड़ा है, वो 6 फीट का आदमी भी रहेगा, लेकिन आपको छोटा सा दिखाई देगा, बहुत बड़ा नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? तो क्यों बोलो? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पे बोलो? बियॉन्ड 2f1. मतलब आप 4th फ्लोर पे हो और कोई नीचे खड़ा है तो आपको छोटा सा दिखता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है बोलो? आपके आई लेंस के 2f1 के बाद है, और इसकी इमेज कहाँ बन गई बोलो? f2 और 2f2 के बीच में आपके आंखों में बन गई और छोटी वाली बन गई. दैट्स व्हाई यू विल ऑब्जर्व द पर्सन टू बी स्मॉलर वन, है ना. ऑब्जर्व द पर्सन टू बी ऑफ लेस हाइट, है ना, छोटा दिखाई देता है. तो क्या है बोलो? फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने कहा रखा बोलो 3f1 और 2f1 के बीच में, इससे दो रे निकाले. पहला रे कैसा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर passing through the convex lens it will pass through the focus. रूल आपको याद है ना.
सेकंड रे कैसा है बोलो, पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पास विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे इमेज बनी। इमेज कैसे बोलो, इन्वर्टेड है, रियल है, क्योंकि हम इसमें अगर रेटिना रख देते तो आपकी इमेज रेटिना पे आएंगी, रेटिना से हमें आंखों में दिखाई देगी, तो ये रियल है। उसके बाद कैसे बोले, इन्वर्टेड है। उसके बाद कैसे है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। सो दिस वे द इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर, ओके। सो दिस इज द सेकंड केस। इन थर्ड केस द ऑब्जेक्ट इज अगेन ब्रॉट नियरर टू द लेंस, लेंस के नजदीक लाया ऑब्जेक्ट, है ना। वेयर इट इज केप्ट एट ट्वाइस ऑफ f1 फिक्स, ट्वाइस ऑफ f1 पर रखा है। हाउ द रेज वी हैव ड्रॉन, द फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे, हाउ इज द सेकंड रे, सेकंड रे पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर, पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। फिर ये दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, तो क्या दिखाई देता है हमें, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बनेगी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की आपको इसमें इमेज बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन कैसे बोलो, इमेज इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही इमेज का साइज है, ठीक है। नाउ हियर व्हाट यू फाइंड, हियर the object is again brought closer where the first object was at infinity, then beyond 2f1, then at 2f1, then between 2f1 and f1. How is the first ray parallel to principal axis? After passing through convex lens, it will be converged and will pass through the focus, focus f2, okay. Then second ray passing through optical center, pass without any deviation, they will intersect here. How is the image now? Image is very large, a dash, b dash, और कहाँ बन गई बोलो, 2f2 के बाद बन गई, ठीक है। तो अगर आपको दूर से कुछ पढ़ने, होर्डिंग लगा है, होर्डिंग में कुछ लिखा है ना, और आपको पढ़ना है, जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपका हमने होर्डिंग लगा दिया और आप वहां पे पढ़ रहे, तो नाम नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं, बोलो होर्डिंग के नजदीक जाते हैं, नजदीक जाते तो आपको उसका नाम दिखना शुरू हो जाता है। तो यही बात है, आप नजदीक गए, मतलब क्या किया आपने, इस बोर्ड को, होर्डिंग को आपके आंखों के नजदीक लाया, नजदीक लाया तो क्या हुआ, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस क्या हुआ बोलो, फोकस से चला गया। सेकंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पास्ड विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, और दोनों यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुए, तो इमेज कौन सी बन गई, a dash b dash। हाउ इज द इमेज नाउ, इमेज इज एनलार्ज, इमेज कैसी हो गई, बड़ी हो गई, और बड़ी होने से आप वहां पे जो भी लिखा था होर्डिंग के ऊपर वो बड़ा हो गया, बड़ा होने से आप पढ़ सकते हैं, दूर से नहीं पढ़ पा रहे थे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, नजदीक आने के बाद आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इमेज कहाँ बन गई बोलो, 2f2 के बाद बन गई, एनलार्ज इमेज बन गई, और उसका इन्वर्टेड नेचर है, रियल नेचर है और एनलार्ज्ड है, ठीक है। देन here is the case when we keep the object at f1, object अगर f1 पे रखे तो क्या हुआ, first ray parallel to principal axis, pass through focus, second ray passing through optical center, pass without any deviation. They are going there but they are intersecting at infinite distance, ये infinite distance पे जाके intersect करेंगे, और infinite distance जाके intersect करने के बाद बहुत large image बनेंगी, but infinite distance we cannot find in a book पेज पे दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ पे हम intersection उसका दिखाया नहीं, मतलब इमेज फॉर्म होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी, लेकिन वहां पे दिखाई नहीं दे रही, ओके। देन हियर इज द, तो ये क्या होगा बोलो, आप बुक अगर आपके आंखों के बहुत नजदीक पकड़ लिए तो क्या होता, आपको बुक पढ़ना नहीं आता, या आंखों को तकलीफ होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया बोलो, आपने बुक कहाँ रखा, आपके आई लेंस के फोकस पे रखा, फोकस पे रखा तो क्या हुआ, उसकी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन गई, तो वो आप पढ़ नहीं पा रहे। Then here is the last case. Here the object is kept between f1 and optical center. कहाँ रखा बोलो, optical center और f1 के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक लाया, तो क्या हुआ, first ray parallel to principal axis, pass through focus, second ray passing through optical center. These two rays are now diverging. These two rays are not coming closer, so they will never intersect on this side. इस साइड में कभी वो intersect हो गई नहीं, बराबर है। उस साइड में अगर वो intersect नहीं होते, तो अगर इस साइड से उल्टे डायरेक्शन से देखेंगे आप, इधर से आप अगर देखते हैं आई से, तो क्या होता है, दे आर फीलिंग टू बी इंटरसेक्टेड ओवर हियर, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे ऐसे समझ में आएगा, और यहाँ पे एक बड़ी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, देखो ए ऊपर है, यहाँ पे ए ऊपर है, यहाँ पे ए ऊपर था, ए डैश नीचे था, इन्वर्टेड था, यहाँ पे कैसे बोलो, ए डैश ऊपर है, ए ऊपर है, तो यहाँ पे कैसी बनेगी इमेज, एनलार्ज इमेज यहाँ पे बनने वाली है,
है ना। और रियल नहीं रहेंगी, इट विल बी वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसमें आप अगर स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे आएगी नहीं इमेज, क्योंकि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, आपको वैसे फीलिंग आ रहा है या इल्यूजन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी बोलो, वर्चुअल बन गई, एनलार्ज बन गई, और इस तरह से ना यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, और आपको आपका आई जो है दूसरे साइड चाहिए, तब जाके वो दिखाई देगी। तो आप आपके किताब को अगर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पढ़ते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस किताब के नजदीक पकड़ना पड़ता है। मतलब आपने क्या किया, किताब में जो लिखा है वो लेटर्स कहाँ रखे बोलो, F1 और O के बीच में, ठीक है, F1 और O के बीच में रखे, और उससे हमने पढ़े तो एक बहुत बड़ी इमेज बन के दिखाई दी, और आपके जो लेटर्स है बड़े बड़े दिखाई दिए। या पाम रीडर रहते हैं, आपका भविष्य बताते हैं, ठीक है। तो भविष्य बताने वाला वो क्या करता है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेता है और फिर वो आपका पाम के जो लाइन से वो देखता है, उससे आपका फ्यूचर बताता है ना। तो आपका फ्यूचर किसके ऊपर है, पाम के लाइन्स के ऊपर है क्या, नहीं, आपका फ्यूचर है आपके हाथों में। आप डेली कितना हार्ड वर्क करते हो उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो डेली हार्ड वर्क करो और उससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो जो पाम रीडिंग करते समय लाइंस देखने के लिए आप जो रहेगा वो कहाँ से दिखेगा बोलो, ये कॉन्वेक्स लेंस से दिखेगा, है ना। दैट इज द लास्ट केस। या आप बुक पढ़ते हो कॉन्वेक्स लेंस से, दिस इज द केस। ओके, सो यू ड्रॉ ऑल दिस फिगर्स and explain how you are drawing it. Okay, it is shown in figure 10.16 in your textbook. Do this homework. Okay, and also draw table 10.4. In 10.4 the nature of the image and position of the image, everything is indicated. So you have to draw which table 10.4 and the figure will 10.16 as a homework. Okay student, so I am very busy nowadays because there are 1500 12th standard paper for moderation, है ना. So I have that much paper I have to moderate. So I am moderating it day and night, and I have to submit on Monday. That's why. So these 3-4 days are very busy. Okay. Then you complete this homework and put the feedback on the WhatsApp. Okay. Bye.